चल रहा है? Started. Let's wait for some people to see to join. गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश बगानी और इस वक्त मैं हूँ इंदौर में और आप सभी का स्वागत है मेरे शो जिसका नाम है द हेल्थ टॉक शो। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया में आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ब्लॉगिंग का ज़माना है, एजुकेशन का ज़माना है और अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली कोविड के बाद सोशल मीडिया का ज़माना है। इस सोशल मीडिया ने हमें काफ़ी सारे फायदे दिए हैं, काफ़ी सारे नुकसान दिए हैं और एक खासियत एक सोशल मीडिया की है कि आज हम डायरेक्टली किसी भी पर्सन से जुड़ सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। हम आपके पास लेकर आए एक ऐसा चैनल जिसमें निष्पक्ष अपने हेल्थ केयर एक्सपीरियंस के साथ जो मुझे है लास्ट 15 इयर्स का, उसको मैं यूटिलाइज करके आपके पास लेकर आऊँगा अच्छे डॉक्टर्स जिनसे आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं डायरेक्टली। वो कैसे काम कर रहे हैं, सोसाइटी को कैसे बेनिफिट कर रहे हैं, किन विभिन्न बीमारियों का इलाज करते हैं, कैसे करते हैं और जनता को कैसे वो लाभान्वित कर रहे हैं, हाउ दे आर हेल्पिंग पेशेंट्स टू गेट देम बेटर ट्रीटमेंट। So today with me is very charming Dr. Gaurav Jain. Hello, I welcome you all to the Health Talk Show, and I hope I will be of use to all of you. So Dr. Gaurav Jain, सबसे पहले मिच्छामि दुक्कडम. Michhami Dukkadam. So just recently Parishans are finished, right? Yeah, just 2 days back. 2 days back, yeah. So Dr. Gaurav Jain is a pediatric orthopedician. He is based out of Indore, and Dr. Gaurav Jain is a very charming personality. As you can see, he's smiling and talking. So I'm confident that he may be treating his patients with the same kind of smile and enthusiasm. Definitely for a pediatric orthopedics, because I'm dealing with the kids, so I have to get down to their level to get the confidence of those kids. So I have to be kiddish, more kiddish than the usual doctors you have seen. मतलब बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। क्या बच्चों के साथ बच्चा बनना ही पड़ता है, अदरवाइज दे वोंट कोऑपरेट एट ऑल। अच्छा, मेरी एक क्यूरियोसिटी है, जब मैं डॉक्टर साहब से पहली बार मिला तो मैंने काफी आई हैव मेट सो मेनी पीडियाट्रिशियन, आई हैव मेट सो मेनी ऑर्थोपेडिशियंस. ही इज एन पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन. So the one thing which I wanted to ask him right now is what is pediatric orthopedics? Number one. Number two, how it is different from conventional pediatric practice and conventional orthopedic practice. Number two. But before that, I would like him to brief about his qualification, what all he studied, where all he studied, what were his likes about his medical study, what he did not like about his medical study, and so on. Thank you, Lokesh. I am an orthopedic surgeon. That means I have completed my MS D Ortho from Jabalpur, and after finishing it, I have completed my DNB Orthopedics from Mumbai. After that, for pediatric orthopedics, at present there are no MCH courses, so we have to go for fellowships. So I underwent fellowship of 1.5 year under Dr. Atul Bhaskar and Dr. Alarik sir. So under their guidance, I learned a lot about pediatric orthopedics. Pediatric orthopedics is per se not a new branch, but although it appears to be a new branch, but it's not a new branch. In the basic word of orthopedics, orthos means to correct their deformity or to strengthen, and pediatrics is itself goes to the pedia means kids. तो ये जो ब्रांच थी ऑर्थोपेडिक्स, बेसिकली वी वर डीलिंग विद द करेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिटीज इन किड्स. Nowadays with the advancement, now we are completely diverted from our basic route. Now we are going more into replacement, more into spines, more into mechanical sort of things. So more of technological innovations are happening in orthopedics. And it's a day or demand of the day also. Yeah. ये तो टाइम के साथ होना ही था. But in this way, kids are not adults. We Yeah. must not forget this. Kids are not miniature adults. True. So their diseases, their problems, their way of treatment is completely different from those of the adults.
So all those adults orthopedics, that orthopedicians, they are more into these things. So whenever the fractures come for a kid, they will think of wiring, they will think of nailing, and so is the continued prediction in all this in the society. All the kids must be treated with this, all same fractures. If fracture is same, so the treatment will be same. But this is not the fact. In pediatric orthopedics, it's a quite challenging thing. We have to learn the anatomy, we have to learn the development of the child, how the bone will develop, and then hence we have to plan the treatment accordingly. In adults, the bone is completely formed, but in kids, the bone is forming. So here lies the basic difference between adult orthopedician and a pediatric orthopedician. Alright, so that brings to me to another counter question, Dr. Gaurav. Is it how much is the ratio? Like for a general public, अगर आम जनता आपसे पूछे कि सर pediatric orthopedician में pediatrics कितना है, orthopedician कितना है? Actually, it's orthopedics only. Okay. We are not dealing with pediatrics much into our field. What we are dealing with the bones and joints of the pediatric age group. So it's pediatric orthopedics. But we are not dealing with general pediatrics. Means we are not dealing with the immunization. We are not dealing not with getting infectious diseases, no cold and cough, no immunization, no vaccination. All the deformities and bone joint problems we are dealing. Okay, so मतलब आपका जो काम करने का स्कोप है, जैसे कि हम हॉस्पिटल्स में हम काम करते हैं, तो सबसे पहले हम किसी हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो बाहर आजकल एक बोर्ड लगा जाता है, स्कोप ऑफ सर्विसेज, isn't it? वो NABH accreditations के लिए हॉस्पिटल्स लगाते हैं. जनता को जैसे काफी लोग जानते होंगे NABH के बारे में मैं बता दूं. NABH जो है National Accreditation Board for Healthcare. That is the body, an authorized body in India which is responsible for quality assurance and management in different hospitals across the country. And thanks to them, because of them, you can see now there is uniformity of structure, protocols, clinical practices, infection control guidelines, so many things. It's a vast work to do which very fabulously hospital people are doing these days. And that also now reminds me of one thing which we just passed of the second wave. So second wave, first wave were very and very deadly in terms. My tribute to all the deceased, my tribute and my regards to the all family, all the healthcare workers, in particular the frontline workers, which were involved in day-to-day control of this and the administration of the different districts, central and the state governments. So the question which we were talking is how pediatric orthopedics is different. So one answer which you gave to us is that it has nothing to do with the immunization, it has nothing to do with the vaccination, it has nothing to do with the general management of pediatrics or growth. It has to do with the deformity. Majorly deformity. So if we talk about deformity, जिसको हम देखिए इंग्लिश में तो डिफॉर्मिटी बोलते हैं, लेकिन कन्वेंशन आम आदमी की भाषा में केवल बोलते हैं कि विकलांगता है, विकृति है या इसी तरह की चीजें हैं. अब जब ये आज से मैं 20 साल 25 साल 15 साल या ट्रेडिशनल पुरानी कुछ बातें करूं तो मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूं इस बारे में, लेकिन मैं सुनता था लोग बोलते थे कि यार वो बच्चा पैदा हुआ है उसको ग्रहण का पैर है. काम मतलब सुनते थे हम लोग, है ना, ग्रहण का पैर है या उसका पैर टेढ़ा है या वो अशुभ है या उसने लेडी ने कुछ प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ खाया नहीं होगा या इधर गई होगी या उधर, मतलब जो ट्रेडिशन में ह्यूमन नेचर में चीजें आती हैं. या कई बार ऐसे को सुनने को मिलता है कि ये इसने कोई ऐसा गलत काम किया होगा, ये नहीं खाया होगा, व्हाटएवर. तो उसको पुराने तरीके से लोग लेते थे, लेकिन जब मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस किया, we understood these are diseases. We understood there are some factors responsible for these diseases. We understood that this is either hereditary, either acute, or either being some kind of triggers which are responsible for these kind of diseases. Thankfully, with the technology, thankfully to the medical science development, now there are treatment options for different kind of deformities. So I think you should highlight that which are the common deformities. You should highlight which are the treatment options, but before that you should highlight which are the major causes and which are the major deformities which you have faced in your clinical practice of last 5, 6, 10 years. So सबसे ज्यादा जो डिफॉर्मिटीज हमारे इंडिया में भी कॉमन है वो है क्लब फुट.
क्लब फुट का मतलब क्लब फुट, या क्लब फुट को क्लब फुट क्यों कहते हैं? पहला क्वेश्चन ये, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में पढ़ना चाहा तो मैं क्लब के बारे में, क्लब मतलब या तो जोड़ो या तो एसोसिएशन या तो फुट, तो क्या ये इसका मतलब ये होता है कि जुड़ा हुआ पैर या ऐसा कुछ, इसलिए इसको बोलते हैं? क्लब का एक्चुअली एक और मतलब होता है जो अपन गोल्फ में खेलते हैं, जो उसका बैट सरी का रहता है, ओके, क्लब सरी का, या उसका जो इस तरह का एक पैर इस तरह का रहता है, मतलब उसका जो क्लब रहता है वो एक नीचे से बैंड रहता है, हाँ। और नीचे से स्ट्रेट रहता है, जो आपने टीवी में भी देखा होगा, तो उस चीज का वो क्लब है, तो दिस इज द क्लब फॉर क्लब फुट. So see, all all the jargons and all these terms are coming from the Western world. Yeah. So in the Western world they play golf and they thought it's a club, so it's a club foot. Okay. Scientific term for it, congenital talipes equinovarus. This is अच्छा, the scientific term. So we don't say this kind. Usually CTEV या फिर club foot is the more CTEV, frequently. yes, I was reading about CTEV as a Yeah. short form. CTEV. CTEV या club foot is the more frequently used word. So it is, foot is looking like club. Club. So we are calling it club. लेकिन डॉक्टर, जिसने कभी कभी गोल्फ खेला नहीं, जिसने कभी गोल्फ गांव में किसी शहर में अनजान ने वो क्लब देखा नहीं, तो उसको कैसे पता कि ये क्लब फुट है? पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये क्लब फुट होता क्यों है? क्योंकि मैं जितना जानता हूँ, जैसे मैं भी एक फादर हूँ, मेरी बेटी का बाप हूँ, जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो हमें डॉक्टर ने, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट ने हर शेड्यूल्स पे कुछ ना कुछ स्कैन्स बताए थे कि आपको ये एक्सरे कराने हैं या स्कैन्स कराने हैं या सोनोग्राफी करानी है. तो जो आप बता रहे हैं, पहले क्लब फुट के बारे में बताइए और फिर बताइए कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ये कैसे डेवलप हो जाता है, अगर आप बता दें, क्योंकि आई थिंक योर ऑर्थोपेडिक्स, it's an gynec area to talk about, but still I would like to ask you about your experience. What are the progressions in pregnancy period that this club foot is getting developed? Number one, is it hereditary? Second question. And third, is it something which is due to some environmental factor or some physiological factors also are responsible? See, although we are treating club foot since more than a century, India. in India also, in Europe also, everywhere. Okay. So these club foots are being treated by, usually they were treated some different way, by different way in past. Now we are completely changed to something different that will come further. Okay. But unfortunately, the cause of club foot is still unclear. Really? Yes, although it is the most common deformity to be faced by kids to be newborn, but the cause is still unclear. Some predictions are there कि कोई वो लोग बोलते हैं कि it may be because of hereditary. There are many genes that have been associated with this problem. कोई बोलता है कि it is environmental factor. Environmental factor means कि जब बच्चा जब पेट में होता है तो पेट में जगह कम होती है, तो उसके कारण ही उसका Is it because of the amniotic fluid absenteeism Yeah, or this low is also, quality? yeah, एक कारण ये है जो कि बताया जाता है क्लब फुट का कि इस कारण से हो सकता है, but still to be bottom line we are not sure कि ये क्लब फुट क्यों होता है. Although we know the treatment now, but we still don't know the cause. So there are many genetic factors and there are many environmental factors. तो आपके कहने का मतलब ये है कि इस पे रिसर्च हुआ है, लेकिन still we don't know. We don't have any conclusion that what are the exact reasons, but we have findings. Yeah. And the findings suggest that this is because of some factors of hereditary, some factors of environmental. Just adding to that, I was just going through some article this afternoon. One of the UK doctor was talking about club foot. He was telling this is more in Asians and Africans. Yeah, it Is is it, more am I in right? Mongolians. Mongolians are more. Is it? Am I right? Yes. Okay. Definitely. So this is, if it is more in Asians, what is the proximity of this in India? And since we are sitting in Indore, which is the cleanest city of India for the 5th time, right? And Indore is the one city which has got first, who got first in 100% first dose vaccination of COVID-19. So in the number one जिसको बोलते हैं इंदौर आएगा, नंबर 1 जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ अगर हम पूरे एमपी की बात करें, if we talk about the whole of Madhya Pradesh, how much percentage of the population is having this? Any idea you have? Any understanding you have? So in rough estimates, although this some studies have been done in India also to know the prevalence कि कितने percentage बच्चों में ये problem होती है,
तो वी गॉट टू नो कि इट इज अबाउट 1 in 1000 born kids. मतलब अगर कोई 1000 बच्चों में किसी एक बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है. तो कॉज क्या है कि अपन ये नहीं पता कर पाते हैं, क्योंकि इंट्रायूटेराइन, जैसे आपने भी पूछा था, उसका अपन स्किप हो गया क्वेश्चन. इंट्रायूटेराइन इस चीज को डायग्नोज किया जा सकता है, इन स्कैन्स अपन तो को व्यूअर्स प्लीज नोट, डेफिनेटली दिस पता कैन बी चल डायग्नोज्ड व्हाइल प्रेगनेंसी. या किसी भी स्कैन को मिस नहीं करिए. जो भी आपके गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इस टाइम पे ये स्कैन करना है, हर स्कैन का कोई ना कोई साइंटिफिक पर्पस है. वी आर नॉट prescribing scans to gain money from you, to take money from you, but it is scientific to know. It is proper. We are assessing the proper development of your kid. So don't skip any step. पर हाँ, जहाँ तक स्कैन्स की बात है, हमने जनरली प्रेगनेंसी को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं. What we call trimesters. तो 3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर. 9 महीने का बच्चा, 3 महीने का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीने का सेकंड ट्राइमेस्टर, लास्ट 3rd मंथ का 3rd ट्राइमेस्टर. तो जो पहले ट्राइमेस्टर में अगर बच्चे को फुट में कोई प्रॉब्लम आई, दिख रही है, अगर स्कैन पे वो नोटिस हो गई है, तो इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद अदर एनोमलीज इन द बॉडी. इट मे बी स्पाइन, इट मे बी हार्ट, इट मे बी रीनल, मतलब किडनी, इट मे बी एनी अदर बोनी एसोसिएशन. ओके. और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में ये दिख रहा है, तो दे आर ट्रू सीटीवी, दे आर ट्रू क्लब फुट्स. ओके. और अगर 3rd ट्राइमेस्टर में ये चीज आती है, तो इट मे बी बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि पेट में जगह कम है, पानी कम है, तो पैर वैसा है, ओवर क्राउडिंग व्हाट वी कॉल, स्टफ कर दिया अपन ने बच्चे को छोटी सी जगह में. Okay. तो इसके कारण 3rd ट्राइमेस्टर में आ रहा है. तो वो अगर 2nd ट्राइमेस्टर में ये क्लब फुट आ रहा है, तो दे विल मोर लाइकली टू बी प्रेजेंट एट द बर्थ. पर 3rd ट्राइमेस्टर में आ रहा है, तो वी से कि ये धीरे धीरे हो सकता है टाइम के साथ रिजॉल्व भी हो जाए, या फिर बर्थ के टाइम पे बहुत सपल डिफॉर्मिटी रहे, जिसमें अपन को कुछ करना नहीं. इस पॉइंट के बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे जब हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करेंगे. तो मुझे आपसे बात करके ये समझ में आया कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जब भी कोई प्रेग्नेंट है आपकी फैमिली में, कि आपके डॉक्टर्स द्वारा जो स्कैन्स या जो सोनोग्राफीज या टेस्ट बताए गए हैं, प्लीज कोशिश करके सारे करवाइए, क्योंकि ये बच्चे की हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि एक बार बच्चा अगर उस विकृति से या किसी प्रकार की कंजेनाइटल डिसीज से पैदा होता है, तो उसकी ट्रीटमेंट्स करना और एक बड़ी जिम्मेदारी होती है. हम समझ सकते हैं कि घर में कोई बीमार होता है तो कितनी परेशानी होती है, क्योंकि मेरे फादर खुद वो डायलिसिस में है लास्ट 7 ईयर से. तो उनके लिए मुझे भी एफर्ट डालने होते हैं, सेवा करनी होती है. अगर कंजेनाइटल बच्चा अगर किसी बीमारी के साथ पैदा होता है, तो पेरेंट्स की कितनी परेशानी होती है और पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है. तो दिस इज वन पॉइंट. So doctor, you were talking about if it is presented in the first trimester, it is more like to be go by. It will dissolve or it will not be present. In first trimester, it will be associated with anomalies. But in 3rd trimester, it may go by. It may go. May not be true CT. तो आपका कहने का मतलब है रिस्की सिनेरियो है सेकंड ट्राइमेस्टर में, जहाँ पे डॉक्टर के द्वारा बताया गया स्कैन को जरूर कराना चाहिए. Definitely. Okay. तो सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर आप हैं, जो भी लेडीज अगर मेरे प्रोग्राम को देख रही हैं इस वक्त कहीं भी देश में, अगर आप सेकंड ट्राइमेस्टर में प्रेग्नेंट हैं, तो आप जरूर आपके डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए सेंस को, हालांकि मैं तो पूरे के लिए बोल रहा हूँ कि आप डॉक्टर के एडवाइस फॉलो करिए, लेकिन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं. और मेरे साथ डॉक्टर गौरव जैन है, जो कि पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन है, जो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में नॉर्मली इसको प्रॉपर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है. राइट. सो ये बात होगी डिटेक्शन की. अगर डॉक्टर हमने इसको सेकंड ट्राइमेस्टर में डिटेक्ट कर लिया, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होता है? देखिए, ये बीमारी ऐसी नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली दूसरी बीमारियां जो डिटेक्ट होती हैं उनका तो अपन कुछ नहीं कर सकते. देन वी हैव टू मे बी गोइंग फॉर एमटीपी और जो भी हम उस बारे में बात नहीं वो चीज अपन डिस्कस नहीं करते. हम इस शो में किसी प्रकार की एमटीपी की बात नहीं करते. पर जो क्लब फुट के बारे में बात करेंगे कि ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है. और दूसरी अच्छी बात यह है कि इस बीमारी का 100% क्योर है. तो अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में भी बच्चा को अगर अपने वो स्कैन में आ रहा है या 3rd ट्राइमेस्टर में आ रहा है, तो मैं अपने व्यूअर्स को बस इतना ही बोलूंगा कि इस चीज के लिए वरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. आजकल इस बीमारी का बहुत अच्छा क्योर है और आपके बच्चे की गारंटी में देखिए, we don't say this word की गारंटी दे रहा हूँ, but to be practical terms में मैं बोल सकता हूँ कि आपका बच्चा perfectly all right रहेगा. So it's a good note to know that कि ये जो बीमारी है, the disease which we are talking about, which is club foot,
which Dr. Gaurav Jain is mentioning now. He is assuring and is talking that please get the scans properly done. Even if you find some findings are there in the scans, please don't worry. There are various treatment options, possible options for such kind of conditions, right? तो डॉक्टर ट्रीटमेंट कब चालू होता है? मैं जैसे कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल दो केस लेते हैं, हम दो सिनारियो समझते हैं। हम एक सिनारियो ये समझते हैं कि एक देयर इज अ प्रेग्नेंट लेडी, राइट? शी हैज अंडरगॉन स्कैन्स और नॉट अंडरगॉन स्कैन्स एंड शी नोज दैट द चाइल्ड मे बी हैविंग अ क्लब फुट, जिसका पैर मुड़ा हुआ होगा, राइट? और उस बच्चे का जन्म होता है। एक ये सिनारियो है। एक वो सिनारियो है जहाँ पे हमने स्कैन नहीं कराया, हमें नहीं पता और हमारा बच्चा क्लब फुट के साथ में पैदा हुआ है। दो चीजें हैं, एक तो ये हो गया कि आपको पता है कि आपके बेटे को ये इस कंडीशन में स्कैन में आया है, तो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर से लेके जब तक आपका सेकंड ट्राइमेस्टर से लेके जब तक आपका थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, वो 6 महीने 4-5 महीने का पीरियड आप टेंशन में रहते हैं। वो टेंशन में रहेंगे। तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ कि जो भी है इंट्रायूटेराइन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आजकल फीटल सर्जरीज होती हैं, बट क्लब फुट के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्लब फुट जो बीमारी, मैं उसको बीमारी कहो या जो भी कहो आप, ये बहुत सिंपल, मतलब बहुत इजीली ट्रीटेबल है। तो केवल इसका डिटेक्शन हो जाने भर से डरने की जरूरत नहीं है। डिटेक्शन हो जाता है वो वेल एंड गुड है, अपन जल्दी से जल्दी प्रिपेयर्ड रहेंगे चीजों के लिए। आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स को, आप अपने और थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं इस बीमारी के बारे में, पर डरने की जरूरत नहीं है। अगर क्लब फुट आ रहा है बच्चे को तो उसके लिए बिल्कुल डरना नहीं है। स्कैन्स के टाइम पे अगर कोई क्लब फुट आया, वी शुड नॉट वरी। और जैसे ही बर्थ होता है, वी विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट। जनरली हम 2 या 3 दिन में ही प्लास्टर शुरू कर देते हैं। उसमें बात में या वी विल डिस्कस। तो मेरा पहला सवाल ये जो था, जो आपने बताया कि जिनको पता है कि उनके बच्चे को ऐसी कंडीशन है क्लब फुट की या कोई एनोमलीज हैं, उनके बारे में आपने मैसेज दिया कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, प्लीज टेंशन ना लें। टेंशन लेंगे तो अपनी दूसरी बीमारियां बढ़ाएंगे प्रेगनेंसी में। ज्यादा दिमाग खराब होगा। ओके, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे पेरेंट्स जिनको ये मालूम ही नहीं पड़ा, जिनका स्कैन्स नहीं हुआ, जी, तो उनके लिए एक मैसेज मैं देता हूँ कि आप प्लीज स्कैन करवाइए। डेफिनेटली जैसे जो भी डॉक्टर ने आपको बोला है, जो भी आपको डॉक्टर ने टेस्ट एडवाइस दिया, वो कराइए फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर किड्स एंड योर चिल्ड्रंस सेफ्टी। सो चलिए, दोनों केसेस हम समझ गए। अभी हम ये जानते हैं कि फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि इस तरह की कंडीशन के साथ में बच्चा पैदा हुआ। सपोज आज हम हैं 23 सितंबर 2021 जी, और आज मॉर्निंग में किसी को अगर ये बेबी हुआ है, फॉर एग्जांपल भारत के किसी कोने में, यहाँ अब जैसे आपने कहा कि एक बच्चों में 1000 में एक बच्चों में होता है, तो मैं उसमें कहना चाहूंगा कि देखने में परसेंटेज बड़ा छोटा लगता है कि 1000 में एक बच्चे को हुआ है, लेकिन अगर मैं अगर पेरेंट हूँ तो मेरे लिए तो 100% है। 100% डेफिनेटली। तो मैं उस डेटा पे नहीं कहूंगा कि 1000 में एक होता है, मैं तो ये कहूंगा कि एवरी चाइल्ड इज इंपॉर्टेंट, एवरी चाइल्ड इज प्रीशियस। सो इफ टुडे ऑन 23rd of September 2021 Thursday, if any child is born here in Indore or Madhya Pradesh or India and they came to know that this is the problem, deformity of club foot to their child, what is your 2-minute brief message without any medical debriefing that you want to assure them as a motivation कि क्या हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? फिर आगे अपन फिर कोर्स ऑफ एक्शन ट्रीटमेंट की बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर आपका बच्चा आज ही बॉर्न हुआ है तो सबसे पहले मैं माँ को एक काउंसलिंग करना चाहूंगा कि ये बीमारी के लेकर डरना नहीं है। माँ बाप को, दोनों माँ बाप को, स्पेशली माँ को, माँ। क्योंकि मैंने देखा है कि मदर कुछ ज्यादा ही फिर उल्टी सीधी चीजें दिमाग में आने लगती हैं। दे कीप ऑन बिल्डिंग कैसल्स इन एयर कि आगे जाके क्या होगा, मेरा बच्चा कैसे चलेगा, खड़ा होगा कि नहीं होगा, पैदल चढ़ पाएगा, बच्चों की तरह खेलेगा कि नहीं, ये डिफॉर्मिटी ठीक होगी कि नहीं, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया। फिर जैसे वी वर टॉकिंग कि मैं ग्रहण में चली गई थी, मैं ग्रहण का पानी पी लिया था, या उस टाइम पे सूर्य चंद्र ग्रहण में मैं उधर सूरज चांद में चली गई, या फिर मैंने तांबे का पानी पी लिया। दीज आर ऑल दीज मिथ्स, और इसके लिए अपन को बिल्कुल डरना नहीं है। और अपना बच्चा अगर इस तरह की बीमारी के साथ आया है तो सबसे पहली चीज तो मैं यही बोलूंगा कि पहले तो एक्सेप्ट करेंगे, है ना, एक्सेप्ट तो करना ही है। दूसरी चीज ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपका कोई दोष नहीं, ना माँ का दोष है, ना बाप का दोष है, ना परिवारजन का दोष है।
कुछ खाया नहीं, ये कोई फॉलिक, ये एनटीडी अलग बीमारी होती है जिसमें फॉलिक एसिड के कारण होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो ये ड्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं है कि अगर अपन ने फॉलिक एसिड नहीं लिया या कोई और विटामिन नहीं लिया इसके कारण ये हुआ, इसके कारण बहुत कम एसोसिएशन है पर नहीं होता जनरली। तो अगर क्लब फुट है तो सबसे पहले अपन को यही टेंशन रहना है कि दोष अपने ऊपर नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप जितना मेंटल स्ट्रेस अपना ऊपर लेंगे इस चीज को लेकर, अल्टीमेटली आपके और आपके बेबी के बॉन्डिंग के ऊपर असर पड़ेगा। तो फर्स्ट 3 डेज जो नॉर्मल बच्चा है उसको समझना है कोई बीमारी नहीं है, अपने दिमाग में एक चीज ये सेट करके रखना ही रखना है। हम स्कैन्स भी इसीलिए मैं प्रिस्क्राइब करता हूं जिससे आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के 3-4 दिन होते हैं जिस तक हम प्लास्टर करेंगे वो मदर और चाइल्ड की बॉन्डिंग के लिए बहुत असेंशियल रहते हैं। जितना मदर अपने बेबी को केयर करेगी, जितना बेबी अपने मदर के पास रहेगा, उतना उनका बॉन्डिंग भी अच्छा होगा, मदर का जो साइकोलॉजिकल रहेगा इफेक्ट वो भी इंप्रूव होगा। अदरवाइज हमने देखा है कि मदर बच्चा पैदा होते से ही वो 3-4 दिन तक कंटिन्यूअसली रोते रहते हैं, वो रोती रहती है, मदर के साथ में उसके हस्बैंड रोते रहते हैं, अल्टीमेटली पूरी फैमिली भी सफर करती है। तो मेन बेसिक, क्योंकि इस चीज में डरने की जगह ही नहीं है, वी शुड नॉट बी फियर्ड ऑफ दिस सीटीबी। अगर सीटीबी होता भी है तो देयर इज ए क्योर। बस यही हमारा मेन जो रहता है अपन को, और इसमें दूसरी मदर या फादर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई इसके कारण नहीं हुआ कि मदर की कुछ गलती हुई हो। तो इस तरह का दोष अपने ऊपर नहीं लेना है कि मेरे कारण ऐसा कुछ हो गया बेबी को, या इस तरह की चीजें सोचने से कोई फायदा नहीं। एक मेरे माइंड में जस्ट एक सर से बात करते हैं सिनेरियो है, क्योंकि मैं भी जैसे बताया कि मैं भी पेरेंट हूँ, मेरा भी बेटा है 12 साल का। एक जो हमने केस की भी बात की जिसमें हमने ये बात की कि हमने स्कैन कराया, हमें बताया कि ऐसी कंडीशंस आ सकती हैं, करेक्ट। तो डॉक्टर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गायनेकोलॉजिस्ट ऐसे पेशेंट्स को क्लिनिकली ट्रीट करती हैं, कितनी गायनेकोलॉजिस्ट आपको उस 5-6 महीने के पीरियड में उनको एडवाइस देती हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, आप इस तरीके के किसी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन से जाके मिल लीजिए। और ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जो उस 6 मंथ्स के पीरियड में आपके पास आके एटलीस्ट मिलके मोटिवेट होना चाहते हैं। क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मदर हैं और मातृत्व मतलब हमारे संस्कार में, हमारे भारतीयता में तो एक बहुत नोबल चीज है हमारे इसमें, हमारे संस्कारों में, धर्म में। तो उस समय पे वो जो मेंटालिटी है, उस मेंटालिटी को मोटिवेट करने के लिए, उसको संभालने के लिए, उस डिप्रेशन को संभालने के लिए, क्या ऐसे कुछ गायनेकोलॉजिस्ट आपको उस तरीके के पेशेंट्स रेफर करती हैं कि इनका हमें ये डॉक्टर गौरव जैन ऐसा स्कैन मिला है और ये पेशेंट थोड़े से डिप्रेस्ड हैं, इस कंडीशन में है, क्या एटलीस्ट उनके मिलके, क्योंकि जो डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट बोलेंगे वो तो मानेंगे उनकी बात, लेकिन जब कुछ स्पेशलिस्ट उस पीरियड में बोलेगा या समझाएगा या कुछ डेमोन्स्ट्रेट करेगा या कुछ ऐसे पेशेंट्स के एग्जांपल्स देगा जो ट्रीट हुए हैं, तो उन्हें ऑब्वियसली पीस ऑफ माइंड रहेगा। मेरे हिसाब से एज अ पेरेंट और एज अ ह्यूमन बीइंग प्रेगनेंसी टाइम पे पीस ऑफ माइंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी वही चीज। वो ऐसे कितने केसेस आपके पास आते हैं? जी अनफॉर्चुनेटली जो स्कैन्स होते हैं, वी आर स्ट्रेसिंग अपॉन दी स्कैन्स, बट जो प्रैक्टिकल कंडीशन है उसमें जनरली मैंने ऐसा देखा है कि दे डोंट फोकस ऑन फुट्स एंड लिम्स, क्योंकि जो स्कैन्स फोकस ऑन फुट्स एंड लिम्स, हाँ okay. और स्पेशली सेकंड ट्राइमेस्टर या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि बिकॉज कि उनके पास रश बहुत है। एक दिन में एक स्कैन में, किसी भी स्कैन में अगर एंटीनेटल स्कैन कर रहे हैं वो लोग, तो कम से कम आधा घंटा लगता ही लगता है वो सारे वाइटल्स को, स्पाइन्स को असेस करने में। तो देयर फोकस इज मोर ऑन स्पाइन और वाइटल ऑर्गन्स, तो इसलिए वो अधिकतर टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मैं बोल रहा हूँ ऐसे कोई डाटा परफेक्टली नहीं कहता, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्कैन में अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से भी ये स्किप हो जाती है। मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए होता होगा, मेरे ख्याल से, मैं तो नहीं कहूंगा कि ऐसा होता है, मैं तो कहूंगा कि ऑब्वियसली डॉक्टर्स अच्छा काम करते हैं, पर ऐसा हो भी जाता होगा तो बिकॉज कि ये आपने जैसा कहा कि वाइटल नहीं है और 1000 में से एक बच्चे को होता है, इसीलिए वो इसी परसेंटेज को ध्यान में रख के ज्यादा फोकस नहीं करते उस चीज पे। इसीलिए अगर आपके इस बच्चे को क्लब फुट है और आपने स्कैन्स भी कराए हैं, तो ये चीज एक मैं पॉइंट बताना चाहूंगा कि अगर आपने स्कैन्स भी हुए हैं और उसमें नहीं आ रहा है, तो अधिकतर टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स आके मुझसे बोलते हैं कि सर हमने तो सारे स्कैन कराए फिर भी ये नहीं आया। तो उनके लिए भी ये चीज है कि देखिए ये अपना फोकस जो स्कैन का रहता है, रेडियोलॉजिस्ट का भी, गायनेकोलॉजिस्ट का भी, उनका फोकस मोर रहता है कि वाइटल्स कोई अफेक्ट ना हो रहा हो, कोई एब्डोमेन में कोई एनोमली ना हो या हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो दे विल लुक फॉर मोर फॉर दीज स्कैन्स।
अब ये सीटीई में आना एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग तरीके हो जाती है। अगर किसी ने क्लब फुट किया है, ऐसे पेशेंट्स आते हैं, उनके मदर्स पेरेंट्स भी वरीड होके आते हैं, उनको मैं बस ऐसे ही काउंसलिंग करता हूँ कि वी शुड नॉट बी वरी फॉर दिस। ये धीरे धीरे टाइम के साथ में या तो अपने आप रिजॉल्व होगा, पता चला अपने बर्थ के टाइम पर अपन ने देखा कोई क्लब फुट है ही नहीं और बहुत ही है तो सफल है, उसके लिए आगे कुछ मैनेजमेंट भी नहीं करना है। और अगर क्लब फुट होता भी है बर्थ के टाइम पर तो वी हैव टू जस्ट वी हैव द ट्रीटमेंट कि हम उसको फिर प्लास्टर से ठीक कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में आगे बात करते हैं। मैं तो मेरा कम्युनिकेशन सिंपल है कि अगर हमारे किसी को फैमिली में कोई प्रेग्नेंट वुमन है या कोई प्रेग्नेंट लेडी इस प्रोग्राम को देख रही हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, आप अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में हैं और आपके डॉक्टर ने आपके स्कैन्स एडवाइस किए हैं, तो जैसा डॉक्टर बता रहे हैं डॉक्टर गौरव जैन स्कैन्स में कुछ फाइंडिंग्स हैं, तो जरूर आप पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन से डॉक्टर गौरव जैन या किसी अच्छे पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन या आपके नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन या आपके गायनेकोलॉजिस्ट या आपके ऑर्थोपेडिशियन किसी से जरूर कंसल्ट करिए कि इसका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। तो ठीक है, अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस जैसे कि आपने बताया कि बच्चा आज है, बाहर पैदा हुआ है और क्लब फुट से अगर वो पैदा हो गया है, उसको अगर क्लब फुट है, क्या क्लब फुट के भी टाइप होते हैं? जी, क्लब फुट के बारे में अगर अपन बात कर रहे हैं तो एक अपन उसको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं। एक तो सिंपल क्लब फुट और एक सिंड्रोमिक क्लब फुट। सिंपल क्लब फुट एंड सिंड्रोमिक क्लब फुट मतलब सिंपल क्लब फुट जिसमें केवल और केवल पैर में डिफॉर्मिटी है और कहीं भी दूसरी डिफॉर्मिटी नहीं है, ना तो स्पाइन में डिफॉर्मिटी है, ना ब्रेन में डिफॉर्मिटी है या कहीं और दूसरी डिफॉर्मिटी, लिम्स में मसल्स की डिफॉर्मिटी कहीं भी नहीं है, केवल और केवल प्योरली क्लब फुट है, उसका पैर केवल मुड़ा हुआ है। दूसरे तरह के होते हैं सिंड्रोमिक क्लब फुट। सिंड्रोमिक क्लब फुट्स में दूसरी एनोमलीज रहती है, या तो उनके क्रीजेस नहीं है, जैसे अपन स्किन फोल्ड्स रहते हैं, जैसे अपन एल्बो पे देखेंगे तो स्किन फोल्ड्स रहते हैं, नी पे देखेंगे तो स्किन फोल्ड्स रहते हैं। वो स्किन फोल्ड नहीं है तो उसको एएमसी बोलते हैं, आर्थ्रोग्राइपोसिस मल्टीप्लेक्सा कंजेनाइटा। तो ये बीमारी एक अलग होती है। कभी कभी एनटीडी जो कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, मेनिंगोमाइलियोसील या मेनिंगोसील, जनता देखेगी जी, जनता के लिए हिंदी में या जी तो एक सिंपल तरीके से अपन इसको ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं कि सिंपल क्लब फुट जिसमें केवल फुट में प्रॉब्लम है, या सिंड्रोमिक क्लब फुट जिसमें बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी प्रॉब्लम है। तो अगर हम सिंपल क्लब फुट की बात करते हैं, क्या वो दोनों पैर में होता है या एक पैर में होता है कि किसी एक पर्टिकुलर तरह के पैर में होता है? जी, क्लब फुट बायलैटरल जनरली बहुत कॉमन रहता है, Okay. जनरली बायलैटरली प्रेजेंट करता है, मतलब दोनों पैरों में हो सकता है? बायलैटरल दोनों पैरों में हो सकता है, किन्हीं केसेस मतलब बहुत सारे केसेस में यूनिलैटरल मतलब किसी एक पैर में भी हो सकता है, राइट या लेफ्ट। तो अगर ज्यादातर डॉक्टर दोनों पैर में होता है तो बच्चे को चलने में प्रॉब्लम होगी बाद में बड़ा होकर। यही ट्रीटमेंट का बेनिफिट है कि हम अश्योर करते हैं पेरेंट्स को बिना स्टार्ट किए ट्रीटमेंट कि आपका बच्चे को हम परफेक्टली चला के भेजेंगे। ओके, तो हमने देखा क्लब फुट जो है व्हाट इज कॉमन in one case out of 1000, that's for the data by Dr. Gaurav Jain. Secondly, it can be detected while the pregnancy. If it is detected while pregnancy, please consult your gynecologist or your nearest pediatric orthopedician or pediatrician or any good reputed doctor. Third, if it is detected and the child is born, there is a treatment option. There are two types. One is club foot, which is normal club foot, which can be of in both knees, दोनों पैरों में हो सकता है या एक पैर में हो सकता है, नॉर्मल वाला। सिंड्रोमिक क्लब फुट जिसकी डॉक्टर बात कर रहे हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट बोन्स के साथ में जुड़ा हुआ हो सकता है, डिफॉर्मिटी ज्यादा बड़ी हो सकती है। तो हम पहले बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शन। जो नॉर्मल वाला क्लब फुट है, जो दोनों पैरों में है या एक पैर में है, वो हमें कितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए, कितनी लेट तक भी चल सकता है, किस तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? क्योंकि अगर बच्चे को ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली दर्द होगा। हड्डी का मामला, मुझे भी हड्डी में अगर कोई ट्रीटमेंट कराना है, कुछ कराना है तो मैं तो चिल्ला पड़ूंगा। तो वो छोटा बच्चा है जो पैदा हुआ, जिसने संसार में देखा नहीं, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। देखिए, क्लब फुट का ट्रीटमेंट जैसे मैंने बोला हम जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। नहीं, मैं कुछ टाइमलाइन देना चाहता हूँ। जल्दी से जल्दी कई बार होता है, मेरी जल्दी 1 महीना है, आपकी जल्दी 3 दिन है। मैं बताता हूँ कि जैसे जल्दी से जल्दी का मतलब ये है कि जनरली हम कोशिश करते हैं कि थोड़े दिन स्टार्टिंग में, जैसे मैं मदर और किड की बॉन्डिंग के लिए बोल रहा था, तो दूसरे 3 से लेके 5 दिन तक हम कोशिश करते हैं कि मदर और चाइल्ड की बॉन्डिंग सही तरीके से हो जाए।
मदर का अगर प्लास्टर बांध देंगे तो वो उतनी केयर नहीं कर, वो उतनी बॉन्डिंग नहीं कर पाएगी, उतनी केयर, बॉन्डिंग का उसमें क्या फिजिकल कॉन्टेक्ट वगैरह की जरूरत रहती है। प्लास्टर रहेगा वो हेम्पर रहेगा। तो हम जनरली कोशिश करते हैं कि प्लास्टर्स, अभी आजकल इसका ट्रीटमेंट पूरी तरीके से चेंज हो गया है। इनिशियली जब कभी सीटीबी होता था तो उसके लिए ट्रीटमेंट सर्जरी करते थे बच्चे की, स्टार्टिंग से मतलब उनको बोल देते थे कि आप 3 महीने 4 महीने बाद आ जाना, आपका सर्जरी कर देंगे। पर अभी पूरी तरीके से ट्रीटमेंट चेंज हो गया है और अभी हम जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 5th डे या 7th डे में, बर्थ के 7th डे में हम प्लास्टर या ट्रीटमेंट शुरू करना। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आज 23 सितंबर 2021 को कहीं बच्चा पैदा हुआ है देश में जी, और उसको एक क्लब फुट का बीमारी है, तो उसे 7 दिन के अंदर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके जो डॉक्टर एडवाइस करेंगे उसको शुरू करना चाहिए। तो आपके मुताबिक ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है कि हम प्लास्टर चढ़ाते हैं जी, कास्टिंग चढ़ाते हैं। हाँ, प्लास्टर से। और कास्टिंग कितने दिन तक रहती है जी? प्लास्टर जो रहते हैं वो अपन को करेक्ट करना रहता है, मतलब करेक्टिव प्लास्टर्स रहते हैं। ओके, मतलब आप उसको मॉड्यूलेट करते हैं, धीरे धीरे करके अपन डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना शुरू करते हैं। ऑलराइट, उसमें तो इसके हम हर हफ्ते के प्लास्टर लगाते हैं, मतलब आज 23 तारीख को है तो अगले 30 तारीख को, फिर 7 तारीख को, इस तरह से प्लास्टर्स का शेड्यूल चलता रहेगा। हर मंडे ट्यूसडे जो भी दिन बच्चा आ रहा है उसके हम प्लास्टर्स करते हैं और जनरली 4 या 5 प्लास्टर में बच्चे का पूरी तरीके से पैर ठीक हो जाता है। जितनी डिफॉर्मिटी अंदर रहती है उतनी डिफॉर्मिटी उसका करेक्ट करके बाहर कर देते हैं। तो व्हाट डू यू सी, हाउ डू यू सी, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज द मिनिमल पीरियड ऑफ this plastering time? I mean, say weekly you are doing, so how many weeks minimum you have to do and what is the max weeks you have to do? I know you have to see a patient and diagnose, but still what is the general phenomena? अगर वही चीज है, मैं पुश इसलिए कर रहा हूँ जल्दी ट्रीटमेंट के लिए शुरू कर देना। अगर कोई बच्चा मेरे पास 7वें दिन में आता है तो बहुत सारे बच्चों का ट्रीटमेंट 3 प्लास्टर में ही हो जाता है, 4 प्लास्टर मैक्सिमम, मतलब 4 वीक्स, 3-4 वीक्स में पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट मंथ तक उसका पैर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यही बच्चा अगर मेरे पास 7वें महीने में आता है तो फिर मुझे 5, 6, 7, कभी कभी 8 प्लास्टर्स भी करना पड़ सकते हैं। ऐसे कितने केसेस आपके पास आते हैं? बहुत सारे पेशेंट आते हैं, क्योंकि अवेयरनेस इज नॉट देयर इन द पब्लिक। लोग सोचते हैं कि ये पुराने जन्म का कर्म है और या तो वो ऐसे ही था, उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। लाइक दीज थिंग्स डू हैपन। इन अभी अपन इंदौर में बैठे हैं, पर जो पेरिफेरी से पेशेंट्स आते हैं, कोई 8 महीने का आ रहा है, आज 1.5 साल का बच्चा एक चलता हुआ आया है, और तो और इंदौर में भी मैंने 10 साल की लड़की का भी प्लास्टर्स करा है। तो निग्लेक्टेड, वी कॉल देम एज निग्लेक्टेड क्लब फुट। या फिर उनका कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में 1-2 प्लास्टर कर दिए, कोई से ऑर्थोपेडिशियंस जो इसमें ज्यादा अच्छे से ट्रेंड नहीं है उन्होंने प्लास्टर शुरू करे पर करेक्शन नहीं हो पाया, या थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ और उन्होंने छोड़ दिया। तो ये पूरा एक प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है। जैसे अपन सोच रहे हैं कि प्लास्टर कर देने भर से ट्रीटमेंट नहीं है, अपन इस चीज को आगे आएंगे। तो जो ट्रीटमेंट चलता है वो जन्म से लेके सीधे 5 साल तक ट्रीटमेंट चलता है इस चीज का। really? जी जी, इसीलिए अभी मिथ है कि क्लब फुट अपन ने प्लास्टर लगाया और ठीक हो गया। नहीं, तो आपने तो कहा कि ये बच्चे 4 वीक से 8 वीक 10 वीक में ठीक हो जाते हैं। वही ट्रीटमेंट पैर ठीक हो जाता है। ओके, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ कैच हियर कि पैर ठीक हो जाएगा, मतलब आपका कहना है पर ट्रीटमेंट चलता रहेगा। ओके, कि ताकि वो पीछे रिवर्स ना हो। क्योंकि अगर अपन अब अगर ट्रीटमेंट पे डिस्कस करते हैं, हाँ। तो ट्रीटमेंट में जैसे हम शुरू करते हैं प्रॉन्सेटी प्लास्टर, बहुत बड़े मतलब बहुत अच्छे और बहुत ह्यूमनली गोल्ड स्टैंडर्ड, बहुत राइट? या आई डिड सम रिसर्च। So he was a Ponseti, Ponseti. Ignace Ponseti. He devised a technique called Ponseti method. Right. So in this Ponseti methods, we are teaching, हम जो बच्चों के पैरों को केवल और केवल प्लास्टर से ठीक कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला 3 या 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 प्लास्टर्स में बच्चों का पैर पूरा सही हो जाता है। पूरा सही हो जाता है इन द सेंस कि या तो देखो इसमें अपन पहले इस चीज को ट्रीटमेंट समझने के लिए अपन को प्रॉब्लम समझना पड़ेगी। तो प्रॉब्लम क्या रहती है बच्चों में, बच्चों की जो फुट रहता है वो 3 डिफॉर्मिटीज बोल सकते हैं अपन जनरली उस चीज को। कैवस डिफॉर्मिटी, बच्चों का कुछ ज्यादा ही ऐसा गोल पैर रहेगा। वेरस डिफॉर्मिटी मतलब अंदर की तरफ रहेगा, और इक्वाइनस डिफॉर्मिटी मतलब उसका बच्चे का एड़ी जो रहेगी वो पंजे के हिसाब से थोड़ी ऊपर रहेगी। तो इस तरह की 3 डिफॉर्मिटीज रहती है। तो हम ग्रेजुअली एक डिफॉर्मिटी को करेक्ट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्लास्टर जो लगाते हैं, तो सबसे पहला प्लास्टर लगाने पे हम कैवस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करते हैं। कैवस मतलब केसरी का, इससे सिंपल वर्ड कैवस।
तो केव को करेक्ट कर रहे हैं तो हम पहले उसके पंजे को स्ट्रेटन करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से स्ट्रेट हो जाता है फंगस। अब जनरली क्या होता है, जब पहला प्लास्टर उतारते हैं पेरेंट्स तो वो देख के घबरा जाते हैं कि यार ये तो और ज्यादा डरावना दिखने लगा, डिफॉर्मिटी और ज्यादा बढ़ गई है। बल्कि हमने अभी वायरस को करेक्ट नहीं किया, वायरस मतलब जो पैर अंदर की तरफ था उसको बाहर करना शुरू नहीं किया। ओके, सो देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप जी, प्रोसेस। वो स्टेप बाय स्टेप है, तो पहले प्लास्टर से डरना नहीं है, पहले प्लास्टर उतारने के बाद क्या अपन घबरा जाएंगे, ऐसा नहीं है। डिफॉर्मिटी ऐसा लग सकता है कि ज्यादातर बढ़ गई, फिर सेकंड प्लास्टर में अपन उसको बाहर पुश करना शुरू करते हैं, प्लास्टर को पैर को धीरे धीरे करके बाहर पुश करना पड़ता है। तो अराउंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ प्लास्टर तक पैर पूरी तरीके से बाहर आ जाता है। So it means it is a patient. It requires patience to treat the patient. डेफिनेटली, And the patient should have patience. जी जी, तो मतलब मरीजों को भी थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा और शीघ्र डेफिनेटली क्या बोलते हैं उसको हम लोग, संयम संयम रखना पड़ेगा। और थोड़ा सा मेरा पर्सनल विचार भी है कि हम जब किसी डॉक्टर को दिखाते हैं और हम जानते हैं कि हमारे साथ कोई मेडिकल कंडीशन है फैमिली में, चाहे बच्चों की हो चाहे बड़ों की हो, हमें थोड़ा सा संयम रख के डॉक्टर से बात करते हुए रखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स क्वालिफाइड होते हैं जो डिसीज को ठीक करना जानते हैं। हम अपना गूगल का दिमाग या अपना ये ब्लॉगिंग का दिमाग या नेट का दिमाग जब लगाते हैं तो सारी उलझनें चालू होती हैं। मैं ये खुल के अपने शो पे बोल रहा हूँ, एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी बोल रहा हूँ और एज अ पेशेंट भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे फादर डायलिसिस में, तो मैं दिमाग में लगा था जो डॉक्टर बोलता है मैं वैसा करता हूँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज a truth that please follow whatever instructions are given by the doctor. So आपने ये बात की कि क्लब फुट में हम स्टेप बाय स्टेप बेस्ड ऑन द डायग्नोसिस हम प्लास्टर लगाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बच्चा 3 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते जो उसकी जैसी कंडीशन में लाया जाता है हमारे पास, हम उसको ठीक करके उसको चलाने की कोशिश करते हैं और जिंदगी भर वो ठीक रहे, उसकी बीमारी में आगे प्रॉब्लम्स ना हो, बीमारी बाउंस बैक या वापस ना आए, उसके लिए हम 5 साल तक लगातार कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट प्लान या फॉलो इसके बाद में जब करेक्ट हो जाता है, जैसे अपना अभी इक्वाइनस डिफॉर्मिटी जनरली प्लास्टर से करेक्ट नहीं होती। इक्वाइनस क्या होता है? इक्वाइनस डिफॉर्मिटी जैसे मैंने बताया, एडी जो है वो उंगलियों से ऊपर रहती है, मतलब पंजा उसका इस तरह से रहेगा। ओके, तो ये जब तक डिफॉर्मिटी जनरली बहुत से बच्चों में 50% बच्चों में करेक्ट हो जाती है प्लास्टर से, 50% बच्चों में करेक्ट नहीं हो पाती है। We would like to do this kind of session again with some kind of kids next time. Definitely, so that अभी थोड़े पेशेंट आएगा तो so that we can discuss about their experience, क्योंकि ये आप जो बता रहे हैं ये समझ में काफी लोगों को आ नहीं रहा होगा, आ रहा होगा, बट एक बार जब मरीज सामने होगा वो बात करेगा या उसकी कुछ एक्सपीरियंस बताएगा तो समझ में आएगा। The whole objective is to create a motivation amongst people to get their patient, their kids treated properly. So doctor, you were telling me about that there will be 3 or 4 year continuous treatment. Once the deformity is corrected, के बाद भी फिर हम उनको शूज देंगे। उनको शूज, This is अच्छा, the main important part of the treatment. स्पेशल शूज। प्लास्टर्स मेरे हाथ में है, प्लास्टर में बच्चे को ठीक करूंगा, पर जब पंजा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तब उसकी सेकंड फेज जो कि बहुत लंबी, बहुत कम्बरसम, और यही एक सबसे क्रूशियल स्टेप रहती है बच्चे के पैर को डिटरमाइन करने के लिए। क्योंकि बच्चों के जनरली क्या, पंजा लोगों के दिमाग में भी यही है कि अपना प्लास्टर हो गया, पैर ठीक हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, पैर बढ़िया दिखेगा आपका, पूरा उसके कोई सर्जरी नहीं लगेगी अधिकतर बच्चों में, केवल प्लास्टर से ठीक हो जाएगा। पर जो करेक्शन आया है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उस चीज को मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो बोल रहा हूँ कि पैर ठीक हो जाएगा पर ट्रीटमेंट चलता रहेगा। राइट, सो आपका ट्रीटमेंट हो गया, बच्चा ठीक हो गया, बच्चा चल रहा है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए कि वो बीमारी वापस ना आए जी, कितनी उम्र तक वो इस तरह के शूज करना पड़ेंगे? जनरली हमारे जो प्रोटोकॉल सभी लोगों का अलग अलग रहता है, पर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड प्रोटोकॉल ये है कि स्टार्टिंग के 3 महीने तो एटलीस्ट अपने, लेकिन जो बच्चा चलता ही नहीं है उसका क्या? जैसे वही चीज उन्हीं बच्चों में, उनके बच्चों के लिए भी रिकरेंस, क्या कि प्लास्टर से जो करेक्शन होता था पहले जमाने में, सर्जरीज करते थे, तो सर्जरी क्या होती थी, वो एक तरह से परमानेंट हो जाती थी। तो ये देख के लगता था आप नहीं करते सर्जरीज, हम भी करते हैं, बहुत ज्यादा निगलेक्टेड है जिसमें अपन ने प्लास्टर्स ट्राई कर लिए, या सिंड्रोमिक बेबी है। तो पहला ऑप्शन आप क्या देते हैं पेशेंट्स को? सभी बच्चों को, इवन फॉर अ किड ऑफ 10 years वी प्रिस्क्राइब नाउअडेज प्लास्टर्स, केवल प्लास्टर और प्लास्टर, उसके अलावा और कुछ नहीं, प्लास्टर्स और प्लास्टर्स, नथिंग एल्स। कोई सर्जरी का
सर्जन जो पुराने ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं उनके लिए सर्जरीज एडवाइस करते हैं, पर सर्जरीज का डिसएडवांटेज एक ये होता है कि ये सर्जरीज में बच्चों का पैर तो जल्दी से ठीक हो जाता है पर वो स्टिफ होके रह जाता है। स्टिफ मतलब जो रेंज रहती है बच्चे का, पैर पूरा हिलता है, जो Right. फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अच्छा हाँ, तो ये हम वो उस टाइप के शूज पहन के रखना पड़ेंगे फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ फॉर लॉन्ग पीरियड। ये है क्लब फुट इन द नॉर्मल कंडीशन। जी जी। सिंड्रोमिक कंडीशन में सिंड्रोमिक में भी सेम टू सेम रहेगा। सिंड्रोमिक में प्लास्टर्स का संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा, एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वो ट्रीटमेंट तो उनके साइड बाय साइड चलेगा, कभी डीडीएच के कारण है, कभी बहुत सारे डीडीएच मींस डीडीएच मतलब डिसलोकेटेड हिप, मतलब Dislocated hip। अच्छा, जो आप जो okay। पूरा किसका रहता है किन्हीं किन्हीं Okay। बच्चों को, उसके ऊपर भी अपन को एक बार डिस्कस करना चाहिए क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड कॉज ऑफ डिफॉर्मिटी इन किड्स है जो डीडीएच है। तो ये कितना परसेंट आता है? जैसे हमने बोला कि क्लब फुट 1000 में से एक को होता है, तो ये 3000 में एक को ओके। तो डीडीएच वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक्चुअली आई शुड नॉट से दीज वर्ड्स, पर इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर की चूक है। मतलब अगर डीडीएच आप मेरा शो मत करो। कहीं ना कहीं एक्चुअली अगर डीडीएच डायग्नोज नहीं करते, कॉज होने में तो डॉक्टर की कुछ चूक नहीं है, पर डीडीएच को अगर डायग्नोज अपन ने जल्दी कर लिया तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर की Okay। चूक है। तो सिंड्रोमिक में देयर विल बी मल्टीपल प्लास्टर्स and longer treatment Longer for treatment, simple club foot number of plasters will will be be more, high, chances of surgical Are there। intervention will be more. okay, Now so you have to treatment involve will other be- surgeons together, other नहीं, नहीं, specialties for No, this only for pediatric pediatric orthopedics। orthopedics से Okay। तो हमने समराइज करें कि हमने क्लब फुट डायग्नोस किया अगर और बच्चा पैदा हुआ है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे होगा, कितना लंबा चलेगा, और घबराने की जरूरत नहीं है जैसा आपने की कहा। और दूसरा हमने सिंड्रोमिक क्लब फुट के बारे में बात कर ली। एक आपने जो जिनका नाम लिया साइंटिस्ट है जिन्होंने ये इन्वेंशन किया था पॉन्सेटी, तो मैंने थोड़ा कहीं आर्टिकल आज मॉर्निंग में पढ़ा था कि आफ्टरनून में इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं। Definitely। तो व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड इन दिस ट्रीटमेंट, क्या होता है ये? गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब आज के जमाने में गोल्ड स्टैंडर्ड, आज के जमाने में हो सकता है कल के जमाने में कोई नई टेक्निक आ जाए तो वो दूसरा गोल्ड स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो इन मेडिकल साइंस इट इज कंप्लीटली चेंजिंग एवरी डे। Means बट it is the अभी best। अभी के टाइम में वी आर डूइंग, मतलब व्हाट द मेथड वी आर फॉलोइंग, दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब आप कहीं भी चले जाएं, चाहे आप अफ्रीका चले जाएं, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाएं या इंडिया में चले जाएं, 99% of the orthopedicians and 100% of the pediatric orthopedicians, we are following this Ponseti treatment for the correction of So CT. what Dr. Gaurav Jain is saying that it is a gold standard treatment what he is following and other leading doctors are following, which is called as Ponseti Ponseti treatment. treatment and which is considered as the gold standard in the industry in the healthcare. So means it is the best treatment option available for the patients of club foot today. Right. So another question, doctor, which comes up in the mind that पैसा कितना लगेगा? See, पैसे तो अंदाज़न। orthopedicians क्योंकि- पे vary करता है, but we charge very nominal for these kids because it's near to dear to my heart, so we charge very less. But I don't want to be, because it's not a promotion. It's not a promotion. No, why I'm asking But is see, कि 5 प्लास्टर करना है तो we can understand कि थोड़ा बहुत खर्चा होगा, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ डॉक्टर गौरव जैन आपसे क्योंकि आज मिडिल क्लास आदमी या किसी भी व्यक्ति की हम बात करें तो जब कोई मेडिकल कंडीशन आती है तो उसके माइंड में पहला क्वेश्चन आता है कि क्या ये खर्चा, खर्चा, राइट? और अभी जिस तरीके से चल रहा है, आपने कोविड के बाद देखा अभी सब काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में लोगों के, तो कितना खर्चा आता है, अप्रोक्सीमेट क्या होता है रेंज? अब मैं अगर ऐसे एनालॉजी बिठाना Analogy, ऐसे analogy। ऐसे डायरेक्टली कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपना Analogy। प्रमोशन नहीं करूंगा। Analogy। बट अगर एनालॉजी करते हैं कि अगर आपके घर में कोई सिगरेट पी रहा है, या तो फादर या बड़े दादा या जो भी हैं, अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उनका महीने भर का जो सिगरेट का खर्चा रहेगा वो एक लाख। Change the example. I'm not having cigarette in my show. अगर उनका एक You can say चाय, जी, चाय is okay. चाय का खर्चा मोदी जी है तो चाय की चर्चा। चाय का जितना आपका रहेगा, We are not promoting cigarettes. चाय। तो जी, चाय का आपका खर्चा। जो महीने भर की चाय का खर्चा रहेगा एक आदमी का, उसका एक प्लास्टर का Okay। खर्चा है। तो इट इज वेरी नॉमिनल फॉर अस एंड इट इज वेरी ट्रीटेबल। सो Alright। खर्चे के लिए तो इसमें बच्चे के लिए तो सोचना ही नहीं है ज्यादा। नहीं वो ठीक है, पूछना पड़ता है, मेरा काम है पूछना। और दूसरा मेरे को आपसे ये पूछना था कि क्योंकि आप कह रहे हैं वीकली आना है, तो जैसे आप तो इंदौर में हैं, इंदौर में कोई रहता है आसपास वो आ जाता है,
लॉजिस्टिक का भी तो डॉक्टर इशू है ना, कि जैसे कोई भोपाल में पेशेंट है तो आपके पास कैसे आएगा? मैं अपनी ओपीडी भोपाल भी करता हूँ। आप भोपाल जाते अपने ऑडियंस के लिए मैं बताऊंगा कि हर सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को मैं भोपाल में available रहता हूँ। फ्राइडे और भोपाल। तो इस तरीके से काफी बड़ी रीच है मतलब पेशेंट्स की। कोई 2 पेशेंट 3 पेशेंट इस वक्त मेरे रीवा के चल रहे हैं, 3-4 पेशेंट मेरे सागर के चल रहे हैं, विदिशा के चल रहे हैं, और इंदौर के आजू बाजू तो जितने भी धार खंडवा वगैरह सभी जगह से पेशेंट्स आते हैं। तो और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रखा रहता है। अच्छा। जिनका ऑलरेडी किसी ना किसी ने ट्रीटमेंट दिया है, वो फेल हो गया या बच्चा रिलैप्स कर गया। वी आर डीलिंग मोर दिस टाइप ऑफ पेशेंट, निग्लेक्टेड पेशेंट, 10 साल का पेशेंट, 8 साल का पेशेंट, इस तरह के बच्चे। My sincere request to audience, if they are viewing this show and if this video reaches to them, अगर आपके पास ये मेरा वीडियो पहुंच रहा है, आज तो खैर 23 सितंबर 2021 है, वायरल का जमाना है आज के लोग हिंदुस्तान में खाने की दुकान का वीडियो देख के जाना पसंद करते हैं आजकल फेसबुक पे, बजाय कि कोई ऐसा वीडियो जो लोगों की जान बचाने में सहायता करे। तो अगर कोई वीडियो देख रहा है और उसके घर में या सुनोन में कोई क्लब फुट का ऐसा कोई मरीज आता है नजर में, तो यहाँ की प्रेग्नेंट वुमन है, तो 2 ही मैसेज हैं सारांश में। डॉक्टर के द्वारा बताए गए स्कैन्स को ढंग से कराइए, अगर कोई इस तरीके की क्लब फुट की एनोमली की पॉसिबिलिटी हो तो मालूम हो सके, अगर ना हो बहुत अच्छा होता है तो प्लीज ट्रीटिंग डॉक्टर से मिलकर उसके आगे कोर्स ऑफ एक्शन का जरूर प्लान करिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर ऐसा कोई आपके आसपास मरीज है या पेशेंट है जो इस तरीके की कंडीशंस के साथ में है, तो प्लीज उसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास, अपने आसपास ऑर्थोपेडिशियन, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, ताकि वो किसी स्पेशलिस्ट के पास या पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन के पास उनको रेफर करें, सो दैट कि उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो सके। क्योंकि विकलांगता के साथ, हाँ विकलांगता के और से विकलांगता भी होती नहीं, ये कम्प्लीटली क्योरेबल चीज है। नहीं, पर अगर नेग्लेक्टेड पेशेंट है तो निग्लेक्टेड पेशेंट है तो विकलांगता कहलाएगी, होगी। पर वो विकलांगता मतलब उसका मतलब यू आर नॉट इनटू द सर्टिफाइंग दीस थिंग्स। हाँ, वो तो सर्टिफिकेट तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से नहीं मिलेगा। मैं और विकलांगता रहेगी क्योंकि फिर बच्चा जो रहेगा वो ऐसे ऐसे चलेगा। अच्छा। उसका जो अंदर वाला है, बाहर वाला हिस्सा रहेगा वो इस तरह से मुड़ा हुआ रहेगा, तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे चलेगा वो। ऐसे तो इसके कारण उसको बहुत अल्सर्स भी होते हैं, किन्हीं किन्हीं बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जबकि ये बीमारी कम्प्लीटली क्योरेबल है और मात्र प्लास्टर से ठीक हो जाने वाली है। तो कुल मिला के प्लास्टर इसके लिए और कुछ नहीं सोचना है। क्लब फुट मतलब प्लास्टर, जल्दी से जल्दी प्लास्टर, पूरे प्लास्टर, और फिर मेंटेनेंस के लिए पूरे टाइम पर शूज। कौन से शूज बोलते हैं उसको? जी, उसके लिए अभी जो स्टार्टिंग में अपन ने शुरू किया था तब डीबी स्प्लिंट, डेनिस ब्राउन शूज बोलते, स्प्लिंट्स बोलते थे। ये शूज स्पेशल टाइप के शूज आते हैं, इसमें दोनों शूज एक रॉड के सहारे जुड़े रहते हैं। मतलब आपके दोनों पैर सामने एक बंधे रहेंगे और बीच में एक रॉड रहेगी। तो उसमें सामाजिक एक्सेप्टेंस का इशू नहीं आएगा डॉक्टर? आता है ये सामाजिक एक्सेप्टेंस तो फिर भी, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 या 2 महीने में तकरीबन रहता है, फिर जब 3 महीने तक कंप्लीटली टाइम पिलाना रहता है, धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो जब तक उनको वो पब्लिक में जाना शुरू करते हैं तब तक वो ऐसा फेज हो जाता है कि अपन 1-2 घंटे के लिए ढील छोड़ सकते हैं। अच्छा, है ना। पर उससे ज्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स का इशू हो जाता है। कैसे? पेरेंट्स, अधिकतर पेरेंट्स बस एक ही कंप्लेंट करते हैं, सर बच्चा पहनता नहीं है, बच्चा रोता है तो उसके दादा बोलते हैं उतार दो, बच्चे ने खुद ही थोड़े से बड़े होते हैं तो वो खुद ही उतार लेते हैं। एक पेरेंट्स को, एक सागर झांसी से आए थे, वो दे यूज्ड टू कम फ्रॉम झांसी टू इंदौर फॉर गेटिंग दिस क्लब फुट ट्रीटेड, और वो इतने विजिलेंट थे कि वो उनके जब बीच में एक बार तो लॉकडाउन के टाइम पे उसने तोड़ दिया, जो शूज था वो टूट गया। These are the stories that मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया, क्योंकि कोई झांसी से शूज के लिए आएगा। तो झांसी से शूज टूटने के लिए वो लेडी खुद बस करके, भले लॉकडाउन में कैसे करके इंदौर तक आई, फिर उसने कैसे तो भी शूज बनवाया। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि सर दादी चिल्ला रही है, रोने लगता है बच्चा तो हम उतार देते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अपन को बच्चों के लिए जितना भी पॉसिबल हो वो शूज पहना के रखना ही रखना है। दिस इज द मेन फोकस जो कि हमारे ट्रीटमेंट पे हेल्पर करता है रिजल्ट्स को। ओके, तो हम ये समझें कि ट्रीटमेंट पॉसिबल है, प्लास्टर से ही होगा। प्लास्टर के बाद जैसे कि डॉक्टर गौरव सिंह बता रहे थे, रिहैबिलिटेशन जिसको मैं अगर कहूं, it's more of maintenance of the same treatment with little bit of care. Are these kids in a position to become athlete? क्या ये बच्चे खिलाड़ी बन सकते हैं? डेफिनेटली कोई बच्चा अगर आपको मिले भी जिसको क्लब फुट ट्रीट हुआ है,
तो कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसको कभी ये बीमारी थी। अच्छा। इसका कंप्लीटली ट्रीटेड क्लब फुट है। जनरली 3 कौन से है? 4 या 5 साल में हम बोलते हैं कि आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, तो उनका फिर रिलैप्स के चांसेस भी कम रहते हैं। 3-4 Relapse होते हैं? जी डेफिनेटली। जैसे मैंने बोला प्लास्टर का एक ही साइड इफेक्ट है, उसी के लिए अपन को मेंटेनेंस के लिए शूज पहनाने पड़ेंगे। तो कोई भी बच्चा देख के नहीं बता सकेंगे कि इसको कभी कोई प्रॉब्लम भी थी, उसका पैर इस तरह से था, नहीं बता पाएंगे। क्लब फुट का ट्रीटमेंट 100% हो जाता है और बहुत अच्छा वो मेंटेन भी रहता है, और कोई स्पेशल टाइप का शूज पहनने की जरूरत नहीं पड़ती उसको। नॉर्मल फुटवेयर पहनता है वो अपनी पूरी एक्टिविटीज कर पाएगा, चलना फिरना खेलना कूदना नॉर्मल बच्चों की तरह ही रहेगा। लेकिन एक बात और जैसे आपने कही कि फैमिली का सेटअप माइंडसेट होना भी बहुत जरूरी है। फैमिली माइंडसेट और फैमिली सपोर्ट के बगैर ये चीजें नहीं हो सकती। और हम ये जानते हैं कि ये गोल्डन पीरियड है, आई मीन मेडिसिन की भाषा में जिसको गोल्डन आवर्स भी कहते हैं, लेकिन ये गोल्डन आवर्स नहीं है, बट से कि इट्स अ प्रीशियस टाइम कि इफ एनी काइंड ऑफ किड इज डायग्नोस्ड विद दिस कंडीशन और एनी condition is being diagnosed by any of the doctor, they should get it treated well on time, and they should have a courage to continue the treatment. Number one. Number two, बजट्स की आपने बात की, आपने बताया कि चाय के बजट के साथ ही इसका इलाज हो सकता है। तीसरी बात, क्या इसको इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं? एक्चुअली कंजेनाइटल है, इसमें नाम में ही कंजेनाइटल इक्वाइनोटेलिकोवायरस, तो कंजेनाइटल बीमारियों को इंश्योरेंस कवर नहीं करते। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योर नहीं होगा ये कवर। ओके। तो ना प्लास्टर का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देगी, ना अगर मान लो कभी आगे जाके सर्जरी करना पड़ी तो सर्जरी का पैसा भी कोई कोई सी कंपनियां रहती है, जैसे कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जो रहते हैं वो लोग फिर भी अफोर्ड करते हैं, पर जनरली जो भी पॉपुलर कंपनीज हैं वो इस चीज को कंजेनाइटल बोल के रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, लेकिन कुछ ऐसी कॉर्पोरेट पॉलिसीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो जिनके पास 500, 1000, 2000 एम्प्लॉइज होते हैं, वो ग्रुप पॉलिसीज लेती हैं। उनमें होता है, तो बहुत सारे पेशेंट्स का हमने इस तरह से करा है इंश्योरेंस में भी, पर मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिसीज Is state government or any of the government funding for this kind of treatments? Is there any scheme? There are many schemes. अपने एमपी में भी खूब सारी स्कीम्स हैं, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, RBSK में covered है? RBSK में कवर्ड है, तो हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी इसका ट्रीटमेंट होता है, and that is free of cost. Is it? हाँ, that is free of So it's cost. good news कि अगर आपके बच्चे को, अगर आपके इस तरह की कंडीशन है और आप अफोर्डेबिलिटी में नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट की गाइडलाइन को आप मैच करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, वहाँ के राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम अधिकारी से जाके मिल सकते हैं, या उनकी जो भी टीम होती है उनसे जाके डॉक्टर से मिल सकते हैं और इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। वहाँ जाएंगे तो उसके बाद वो क्या करेंगे? वो रजिस्ट्रेशन होगा उनका, और फिर अगले दिन से जैसे रजिस्ट्रेशन का कार्य मतलब फॉर्मेलिटीज रहती है, पेपर वर्क, और उसके बाद से क्लासेस शुरू कर देंगे। ओके, वो लोग खुद ही करते हैं? वो लोग वहीं पे शुरू कर देते हैं। तो पीडियाट्रिशियन ऑर्थोपेडिक्स का जो मेन रोल है उसमें फिर क्या होगा? It is the expertise. This is our expertise. वो लोग सब कुछ कर रहे हैं और साथ में ये कर रहे हैं, हम लोग यही कर रहे हैं और बस यही कर रहे हैं। अच्छा, that is the reason. ये हमारा expertise so है। nothing to worry, it is covered in maybe major corporate insurances through RBSK. And how about आयुष्मान भारत? आयुष्मान भारत में भी है ये। Are you sure? जी, आयुष्मान भारत में तो भी है। it's a good पर thing. देखिए प्लास्टर के लिए कोई मतलब इतना नहीं, मैं देखिए, मेरा काम है, मेरा ये शो इसलिए बनाया है कि मैं अगर किसी डिसीज के बारे में बात करूंगा तो मैं उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करके जनता को बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। तो आयुष्मान भारत में अगर कवर्ड है तो इट इज रियली नाइस कि हर इस तरीके की कोई सपोर्ट है। तो एनी क्वेश्चंस आर देयर? देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम वन इनबॉक्स इज देयर फ्रॉम वन पेशेंट। वन सेकंड। Okay, this patient seems to be from Indore and he is asking, doctor, what if my what if my son is having both bilateral, जो मेरे बेटे को दोनों पैरों में मुड़ने की शिकायत है, मैं आपसे कब कैसे जानकारी ले सकता हूँ? तो You are most welcome. I will share my number to you. And you can call me. I think I can do this thing. You can do this thing. So you can call me at 9111464959. This is my number. You can just Google my name on Google my name. It will be coming just in first 3 categories, and you can call me anytime. Dr. Gaurav, you can. अरे सर, आजकल Google का जमाना है। So that is why I don't have to share my number. Just Google my name. You will be coming to me only.
So anything else you wish to say डॉक्टर? मैंने तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, और मैं जिन लोगों ने ये शो देखा है या जो देखेंगे, जो शो का फायदा लेंगे, मैं उनसे जरूर निवेदन करूंगा, मैं उनसे कोशिश करूंगा, गुजारिश करने की कोशिश करूंगा, पूरा देखें, समझना है अगर शो को ढंग से, बजाय किसी ग्लिम्स देख के इग्नोर करने के। शेयर करें, अगर आपको लगता है कि काम की बात हो रही है तो शेयर करें, लाइक करें, व्यू करें, क्योंकि हम ज़्यादातर तो फूड ब्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, जहाँ पे टिक्कियाँ बन रही हैं, या ओ अरे भाई क्या बटर डाला है वाला मामला आजकल चल रहा है। तो मेरी कोशिश ये है कि लेट्स बिकम हेल्थ केयर ब्लॉगर। आई थिंक आई एम वन ऑफ द few chat show hosts which you have also met, who is talking very neutral, bias. But unfortunately in India, and this is our effort for the health talk show, we have to create awareness about ourselves rather than creating awareness of other brands. Yeah. We have to focus, we should focus. इंडिया में सबसे neglected जो चीज है वो हेल्थ है। अपन सब कुछ कर लेंगे, घर बना लेंगे, ये कर लेंगे, पर हेल्थ इज द मैं भी कह रहा हूँ कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटो ऑफ द हेल्थ टॉक। द हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस तरीके के वीडियोस देखें जो आपको जानकारी देते हैं। मैं ये देखता हूँ कि उन वीडियोस के मिलियंस एंड मिलियंस व्यूज होते हैं जो प्रैंक्स हो रहे हैं, या जो खाना बना रहे हैं, जो ढाबे चल रहे हैं, व्हाटएवर, बट वी मोस्टली निग्लेक्ट आवरसेल्फ। हमारे बच्चों के बारे में भी सर्दी खांसी के ट्रीटमेंट को सबसे कम प्रायोरिटी इंडिया में पता नहीं क्यों मिलती है, कि इतना कम प्रायोरिटी। 10-10 साल के बच्चे क्लब फुट लेके घूम रहे होते हैं, और उनका जबकि ट्रीटमेंट 1 महीने में ही हो जाएगा। really? एक महीने में पैर ठीक हो जाएगा उसका, और 10-10 साल तक बच्चे भटकते रहते हैं। तो दिस इज द अवेयरनेस इज आवर मोटो, कि सभी जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं और जिनके फ्रेंड्स के साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उनको ये अवेयरनेस दें कि क्लब फुट का ट्रीटमेंट 100% है, और इसको निग्लेक्ट करने के लिए कुछ भी ऑप्शन ही नहीं। So just to summarize this show now, we have taken almost 1 hour. It was nice talking to you, Dr. Gaurav Jain in Indore here. I'm Lokesh Bhagani. I'm your host for the Health Talk Show. This is my first show with you, Dr. Gaurav. Thank you. And I'm really happy the kind of enthusiasm you have done, and the kind of knowledge you are being imparting for your patients' education. To summarize this conversation of 1 hour in 2 minutes is, if you are a pregnant woman, please watch this whole video. अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। दूसरा, अगर आपके आसपास नजदीक में किसी बच्चे को पैर मुड़ने की समस्या है, जिसका पैर अंदर मुड़ा हुआ है, दोनों या एक, तो आप जरूर नजदीकी ऑर्थोपेडिशियन से जाके सलाह लें, या गायनेकोलॉजिस्ट से पूछिए, या आप पीडियाट्रिशियन से सलाह लें। नहीं तो जरूर किसी स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक से मिलें। और अगर आप इंदौर में हैं तो डॉक्टर गौरव जैन आपके पास एक्सेसिबल हैं। और आप डॉक्टर गौरव जैन भोपाल भी जाते हैं? भोपाल। ओके, और कौन से जगह जाते हैं? भोपाल, खंडवा, धार, any city, major city you can think of और- around Indore, I am available. और आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना तो है। आप भी इनसे टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो समराइज, इफ यू आर प्रेग्नेंट, प्लीज वॉच दिस शो. If you are having any child nearby who is having clubfoot issues or deformity, please consult your doctor. Thanks for watching this show. Good night. Take care of yourself. Please follow COVID-19 Thank you. protocols and Thank you. behavior, and follow the government guidelines. Shukran. Good night. Namaskar.